Hello, I am Taruni Gandhi, and I am here to share one concern with you all who are residing here in Punjab or even in Haryana or Himachal. If anyone in your family lands in emergency, gasping for a breath, whose SpO2 falls up to 50 and 60, there is an issue that people who are suffering, who actually eventually, suffering pneumonia or heart attack, often feel difficulty in breathing. So in that case, doctors in emergency put a ventilating system to them, be it a high-grade oxygen or a BiPAP or a ventilator. Normally, it is a BiPAP oxygen which is put on patients. Now, what happened is when a patient lands in emergency in need of an oxygen, where doctors, while checking their SpO2 level, place an non-invasive ventilator, which is called BiPAP. They put a BiPAP on them. Now, here is a silent agreement between the private hospitals and ambulances, be it 108 ambulance or the private ambulances. What is this silent agreement? This silent agreement is like a person who cannot afford the, expensive private hospital for their patient always wish to, first settle their patient in the private hospital, then shift them to the tertiary care hospital where all these facilities are available, like PGI or anywhere. What happened is these ambulances do not keep BiPAP non-invasive ventilator into their respective vehicles. Why? Because if they keep it so, then obviously patient would attendant, not the patient, but the attendant would pressurize the respective private hospital to transfer their patient to the tertiary care hospital or a pocket friendly hospital where they can afford the treatment. But this will not help the private hospital. So in that case, they in this silent agreement, they intentionally not keeping BiPAP machines into the ambulances. Hence, the attendant fall prey to these private hospitals, and due to the situation, they admit their patient into intensive care unit or the cardiac care unit, which is really very costly. For one-time entry into the CCU or ICU would cost around in lakhs to the attendant pocket. And all about this, where a patient is gasping for a breath and attendant is in dilemma, is in anxiety how to handle his patient, his or her patient, then they keep on calling A, B, C, different ambulance number, private hospitals, doctors, everyone out there, but they do not get a relief. There is no sign of respite for them. Why? Because of this silent agreement. Now, coming one point is this कि आपको पूरे इस सिस्टम में जब आपका पेशेंट इमरजेंसी में दाखिल है और उसको सांस नहीं आ रही है, तो उस दौरान वो अटेंडेंट जो चाहता है कि उसको किसी तरीके से टर्शरी केयर हॉस्पिटल, प्रॉफिट फ्रेंडली हॉस्पिटल में लेके जा सके, वो उसको बाईपैप नहीं मिलता है, तो वो अपने पेशेंट की हाई ग्रेड ऑक्सीजन पर आने की वेट करता है. नंबर वन इज दिस कि ये जानबूझ के नहीं रखा जा रहा है. नंबर दो बात ये है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर 2022 दिसंबर में कहा था कि जितने टोल प्लाजाज हैं हमारे इंडिया में 900 प्लस जितने भी हैं, वहां पर हम एडवांस लाइफ सपोर्ट व्हीकल एम्बुलेंसेस प्लेस करेंगे. आप जब ट्रेवल करते हैं कभी भी नोटिस कर लीजिएगा, आपको वहां एम्बुलेंस ट्रेवल करते वक्त टोल प्लाजास पे नहीं दिखेगी. मैक्सिमम लोग इंडिया में ट्रेवल ही करते हैं, तो अगर कुछ हार्ट अटैक आता है या ऐसी कोई कंडीशन आती है जिसमें वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो एम्बुलेंस सर्विसेज उनके लिए वहां पर है ही नहीं, तो वो कहाँ जाएंगे.
नंबर 2। नंबर 3, जब बात हो रही है यहाँ पे बाईपैप ऑक्सीजन मशीन की, जो कि किराए पर तो पूरे ट्राई सिटी चंडीगढ़ में अवेलेबल है, पर एम्बुलेंसेस के अंदर अवेलेबल नहीं है। अटेंडेंट से ये कहा जाता है कि अगर आपको अपने रिस्क पे अपना पेशेंट लेकर जाना है, ले जाइए, हम गारंटी नहीं देते आपका पेशेंट नहीं बचेगा, पर आप एक काम कीजिए, आप बाईपैप मशीन किराए पर ले सकते हैं, वो ऑप्शन है। अब वो किराए पर जो अटेंडेंट लेने जाएगा, अगेन वो इतनी महंगी मिलती है मशीन की, कुछ लोग उसे अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते। पॉइंट यहाँ पर ये है कि 3 तरीके की ऑक्सीजन होती है। एक सिलेंडर से जो लगती है, मास्क लग जाता है, बाईपैप भी उसी तरीके का होता है, जो मशीन आती है पूरी प्रॉपर ऑक्सीजन टाइप मास्क लगता है बाईपैप का, जो जिसे नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर कहते हैं। तीसरा होता है वेंटिलेटर, जिसमें यहाँ काटते हैं, कट किया जाता है, यहाँ से इंट्यूबेट करके पेशेंट के लंग्स को सांस दिलवाई जाती है, उसे वेंटिलेटर कहते हैं। वेंटिलेटर पे डालने का सीधा सीधा मतलब मेडिकल साइंस में भी कि पेशेंट शायद ही बच पाए, शायद ना बच पाए। मैक्सिमम चांसेस पेशेंट के नहीं बचने के होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो बच पाए। बाईपैप एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सेफली पेशेंट के चांसेस हैं कि वो बच जाएगा और उस बीमारी से भी शायद बाहर आ जाएगा। अब इस बाईपैप के ऊपर टेक्निकलिटी आम आदमी को तो नहीं पता है, डॉक्टर्स को पता है, या उन लोगों को पता है जो इस सिस्टम में बैठे हुए हैं। तो एम्बुलेंसेस को इस मशीन से जानबूझ के दूर रखा गया, ताकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की कमाई हो सके और एम्बुलेंस सर्विसेज की भी ऑब्वियसली कमाई हो सके। तो इस पूरे खेल को समझना बहुत जरूरी है, और ये सरकार से सवाल करना भी जरूरी है कि ऐसा क्यों है कि जो 108 पंजाब में या कहीं भी चल रही है, वो बाईपैप मशीन अपनी एम्बुलेंसेस के अंदर क्यों नहीं रख रही है। पंजाब में इस वक्त 325 एम्बुलेंसेस हैं। 300 बेसिक लाइफ सपोर्ट पर हैं। बेसिक लाइफ सपोर्ट में भी सिलेंडर अवेलेबल नहीं है, प्रेगनेंसी किट अवेलेबल नहीं है, इवन कहीं में तो बेड भी अवेलेबल नहीं है। जितनी भी एम्बुलेंसेस इस वक्त पंजाब में चल रही हैं, वो मेयरली एक पेशेंट ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, एम्बुलेंस नहीं है। तो इस स्थिति में अगर गॉड फॉरबिड किसी की तबीयत खराब हो जाती है और उसको अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए फिलहाल इस पूरे रीजन में, अकेला पंजाब ही नहीं, हरियाणा और हिमाचल में भी, इस पूरे रीजन में एम्बुलेंस उसका सहारा नहीं बन सकती। तो इसके बारे में आप सबका ये मौलिक अधिकार भी है, और आपके लिए ये जरूरी भी है कि आप इसके बारे में सवाल करें। मैंने फिलहाल में मैं इसमें अपनी खबर भी शेयर कर लूंगी, जो मैंने अभी द संडे गार्जियन में की थी। तो ये एक बड़ा बहुत सीरियस मुद्दा है और इस पर बात की जानी चाहिए। थैंक यू।